Are you fat adapted? Do you know what fat adaptation is? We'll understand science and what is fat adaptation in this video. Hi, welcome to this brand new video. We'll be discussing about fat adaptation. इसके साइंस क्या है, इसमें आप कैसे पहुंचते हैं और साथ में आप इसकी यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं. So no matter you're new to keto or you are an expert in keto, you've been on keto for the longest of times, this is very critical information for your health and wellness goals. Let's dive into definition of fat adaptation. Fat adaptation refers to a physiological and a metabolic process where your body realizes how to utilize fats more efficiently, be it existing fat, be it dietary fat. So keto adaptation could be slightly different, that when you get into ketosis it could be as early as 3 days या आपको लग सकता है 14 दिन भी लग सकते हैं कीटो में आने के लिए, लेकिन फैट अडेप्टेशन कुछ हफ्तों के बाद होता है. फैट अडेप्टेशन के सिंपल से फायदे ये हैं दैट योर मेंटल क्लैरिटी एज वेल एज एनर्जी लेवल्स एंड योर फैट लॉस एक्सेलरेट्स एज यू अडेप्ट टू दिस स्टेट. नाउ व्हेन यू आर गेटिंग फैट अडेप्टेड, आपको एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये 8 से 12 हफ्ते में होता है. That means 8 to 12 weeks of regular ketosis. Yes, this is contradictory to a lot of articles which say that keto को 45 दिन से ऊपर मत करिए, 30 days से ऊपर मत करिए. लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट के ऊपर गाना गाते हैं कि जी 45 दिन से ऊपर मत करिए, 60 दिन से ऊपर मत करिए, आप फैट अडेप्टेड की स्टेट में पहुंच ही नहीं पाएंगे. So it happens between 8 to 12 weeks. It can also happen in 16 weeks. It can happen as early as 6 weeks also. But there are certain signs which will tell you whether you're fat adapted. Sign number 1, better mental clarity. The last time when you remember you forgot something, you were completely blank. Just like few minutes ago you remembered it and then you reach the place or when you speak to the person, you are completely blank. होता है ना बहुत बार, आप गए थे किसी को बात करने के लिए, यार शिट यार मैं भूल गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा. ओ यार थोड़ा सा रिकलेक्ट करवाओ मैं क्या कर रहा था. अच्छा ओ मैंने फ़ोन कहाँ रखा है, मुझे वो नहीं पता है. मुझे किसको फ़ोन करना है. अच्छा इस मीटिंग में हो क्या रहा है, आई एम नॉट एबल टू फोकस, आई एम नॉट एबल टू, मैं बीच में ब्लैंक हो रहा हूँ या ब्लैंक हो रही हूँ. होता है बहुत बार, राइट. This is better mental clarity. Better mental clarity only happens when your body becomes fat adapted. Fat adaptation में क्या होता है, आपका brain realize करता है that it can utilize existing fats and dietary fats which are ketones, which are produced into ketones in a better way. So it realizes this and then your mental clarity improves while you're fat adapted. This is the first major sign if you are on keto for 8 to 12 weeks that you will start feeling fat adapted, or you can also feel it as early as 6 weeks as I mentioned. Second thing is improved energy levels. That when you see those energy spikes and energy dips, इसका मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा. मेरी एक क्लाइंट के साथ में एक्सपीरियंस हुआ था कि वो लंच करके ना सो जाते थे, नींद ना रहती थी. ऑफिस चल रहा है, लैपटॉप पे लगे हुए अपने हिसाब से, अपने जूनियर्स को बता के भाई काम कर लेना, हम तो जा रहे हैं खराटे मारने सोने के लिए. बट वेन यू आर ऑन कीटो योर एनर्जी लेवल्स आर सस्टेनेबल एंड दे आर सस्टेनिंग थ्रू आउट द डे. मतलब दिन में ऐसा पॉइंट कभी भी नहीं आएगा जहाँ पे आपके सामने डिप होगा, बिकॉज द सिंपल रीजन इज दैट, let me go thoda sa technical. The simple reason is when it comes to Krebs cycle calculation, which is a calculation of understanding how energy is produced, which is produced in ATPs. Ketones produce 19 or 21 ATPs as compared to glucose, which is 14. It is a 35% straight increase in the last calculation of Krebs cycle. Krebs cycle से हमें पता लगता है कि हाँ एनर्जी लेवल्स क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं. और दूसरी चीज़ क्या है कि कीटोन्स के अंदर आपकी बॉडी सेलुलर वेस्ट बहुत मिनिमाइज कर देती है. So that point of time you will realize that your energy levels have sustained throughout the day. तो कोई ऐसा टाइम नहीं आया जहां आप लंच करके खराटे मार रहे हैं. Third simple point is better hunger management. That you'll be able to manage your hunger much better when you're fat adapted because your body has enough energy from existing fat and dietary fat which are ketones. It can utilize it so efficiently कि आपको अपने meals के बीच में snack करने का मन नहीं करेगा. मेरे पास में ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो 2 महीने बाद 3 महीने बाद कहते हैं कि यार हमसे तो अपना डिनर नहीं फिनिश हो रहा, हमसे तो अपने मील्स ही नहीं खा पा रहे हैं, हम अपने सुबह के टाइम पे जो सीक्वेंसेस कर रहे हैं उसको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, भूख ही नहीं लगती है. आधे टाइम आधा खाना खा लेते हैं लेकिन लगता है यार बहुत सारा खा लिया है, बिकॉज योर बॉडी स्टार्ट्स यूटिलाइजिंग एक्जिस्टिंग फैट एंड डाइटरी फैट. सो आई वंडर व्हेन पीपल से दैट आई एम ऑन कीटो सिंस 2 years, 3 years, 5 years और whatever years and I'm doing 3 meals in a day. यार खा कैसे लेते हो? आई हैव नो क्लू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर फैट अडेप्टेड यू विल सी योर हंगर मैनेजमेंट मच बेटर. इसका सिंपल सा रीजन ये भी है क्योंकि बिकॉज जब कीटोन्स आपके बॉडी में मेटाबोलाइज होते हैं दे प्रोड्यूस मोर एटीपी. योर बॉडी सिंपली इंडिकेट्स टू ग्रेलिन एंड लेप्टिन एज हंगर हार्मोन्स कि लेप्टिन भाई तू खुश रहे, ग्रेलिन तू सो जा. There is not to worry about. Let's not make the person hungry. And cortisol also down regulates. Dopamine also gets released when you eat your favorite foods, when you eat something with more cheese or you have a black coffee in the day, and it helps you with better hunger management, which is going to be really helpful for you if you are a person who keeps snacking and you snack like a cow.
The fourth simple point is that your body starts burning more fat. It starts burning more body fat. So ये हो सकता है आपके मेन स्केल पे सब कुछ ना दिखाई दे. You would see it on your inch tape. You would see it in your blood reports, that your blood reports also start getting back in range if they are deranged. And this is one of the reasons why I say that a ketogenic diet for a month is a crime which you're doing to yourself, because you will literally leave it within 30 days and your body is not even fat adapted. So when you're fat adapted for 90 days, when you're giving yourself easy time for at least 60 to 75 days, आप अपने 8 से 12 हफ्ते अच्छा खासा टाइम निकाल रहे हो, आप अच्छे तरीके से अपने कीटोजेनिक डाइट पे स्टिक कर रहे हो, आप उसके अंदर बीच में अनएक्सपेक्टेडली कार्ब्स नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप रियलाइज करोगे दैट योर बॉडी स्टार्ट्स यूटिलाइजिंग existing fat and dietary fat in a more efficient manner, which helps you to lose more of body fat. बॉडी फैट के अंदर एक सिंपल सी चीज़ ये समझने की जरूरत है कि इनिशियली जो आपकी प्रोग्रेस होगी पहले 1-2 महीने में, वो आप इनिशियली अपना वाटर वेट लूज करोगे, उसके बाद में आपकी बॉडी जहाँ से ये सिंपली फैट लूज होता है उसको लूज करना स्टार्ट करेगी. So the key of losing fat on keto, which we call as stubborn fat also, would only happen when you are on keto for at least 6 to 8 weeks and you're trying to extend your time on keto and not placing an unexpected cheat day जहां आप समोसे से दूर हो लेकिन आपको पता है कि हाँ मैं वो कभी ना कभी खाऊंगा जब मेरा रिवॉर्ड डे आएगा, but I am focusing on the end progress. This is time and again proved that when you stick to keto for a long period of time, it starts giving you benefits after when you're fat adapted. If you're enjoying this channel, don't forget to subscribe, don't forget to like this video and share this with your friends. हो सकता है वो keto पे होंगे लेकिन fat adapted नहीं है. Coming to fifth way how you know you are fat adapted is that you are able to fast for longer period of times. कभी किस दिन अगर आप मान लो आपने अपना मील भी स्किप कर दिया तो आपको इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही है जैसे आपको नॉर्मली लगती थी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड मेटाबॉलिक स्टेट पे, जहाँ पे आप एक डिनर को स्किप करके अगले दिन सोए आप भूखे शेर की तरह घूम रहे थे. यहाँ पे क्या है, जब आप मान लीजिए एक भी मील स्किप कर देंगे तो उस टाइम पे आप ये भी रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा आपकी बॉडी आराम से एडजस्ट कर रही है. कितनी बार ये होगा कि आप थके हुए आए हैं काम से, आप नहीं बना पाए खाना, आप खाना खाना ही भूल गए. मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ. आई फॉरगेट माई मील्स एट टाइम्स. मुझे पता है कि हाँ मुझे डिसिप्लिनरी अपना एक्शन रखना है, 5 साल से ऊपर हो गया कीटो पे, बट दैट इज अनदर साइन दैट यू विल सी दैट यू आर फैट अडेप्टेड. इसको डिलिबरेटली ट्राई मत करिएगा, बट आप ये रियलाइज करेंगे कि आपके 12 घंटे की फास्टिंग, 14 घंटे की फास्टिंग, 16 घंटे की फास्टिंग ऐसे झट से निकल जाएगी. आपको पता भी नहीं चलेगा किस टाइम पे आपने कौन सा मील खाया, कौन सा मील नहीं खाया, एंड यू विल बी energetic after that also. The next day also, if somebody comes and asks you that okay are you hungry, you would not be so hungry also because your body has become fat adapted. Another point to understand about fat adaptation is that your energy levels improve in your workouts. When people adapt to keto for at least 8 to 12 weeks, तो नीचे वाले लिंक में मैं आपको डाल भी रहा हूँ वर्कआउट्स के लिए जो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उसको जाके जरूर देखिएगा कैसे वर्कआउट, कौन सा वर्कआउट से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. बट जब आप 6 से 8 हफ्ते तक लगातार कीटो पे हैं एंड योर बॉडी बिकम्स फैट अडेप्टेड, यू विल रियलाइज दैट यू विल बी एबल टू ऑप्टिमाइज योर वर्कआउट बिकॉज योर एनर्जी लेवल improve. How does your energy levels improve? Because your body now understands how to utilize fats. So aerobic activity के टाइम पे आपकी बॉडी कीटोन्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करती है. ऑल्सो जब आप एनारोबिक एक्टिविटीज़ में जाते हैं तब के टाइम पे कीटोन्स बिकॉज ऑफ नॉट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं, तो वो आपके ग्लूकोज को ईजिली कन्वर्ट करती है थ्रू ग्लूकोजिनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस. इस सारे के साइंस मैंने नीचे आपको डाल दिया लिंक, प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा टू नो मोर अबाउट इट. बट आपका वर्कआउट जरूर इंप्रूव होगा व्हेन यू आर फैट अडेप्टेड. यू विल reach a point where you will be at your peak lifting stage or where you will be at your peak levels when you're fat adapted. तो सिंपल सी बात ये है कि फैट अडेप्टेशन से पहले भी एक और चीज़ है which is about planning your reward day system which is in 45 to 60 days. हम उसके लॉजिक पे भी आएंगे इन द कमिंग वीडियोज़. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको ये वीडियो काफ़ी सारी नॉलेज देके जाए. सो नीचे आकर लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कितने लंबे समय से आप कीटो पे हैं, कितना लॉन्गेस्ट आपने ट्राई करा है. मेरे 2022 में सिर्फ 2 चीट डेज थे विच वॉज इन अगस्त एंड एज वेल एज इन दिसंबर. तो लिटरली फॉर 363 days of that entire year I was on keto and I have seen this fat adaptation which is very very powerful when you try to do this. Hence I don't place my cheat days very easily, I don't place them randomly and this is a very very key aspect to note. So अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन पे क्लिक करिए, कमेंट करिए अपने व्यूज़, अपने जर्नी के बारे में बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. दिस इज राहुल कामरा साइनिंग ऑफ.